चलो बच्चों, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत ही जबरदस्त और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, तो इसके बाद में जो भी आपको अपडेट्स मिलेंगे, है ना, हर चैप्टर का नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। तो नीट के हिसाब से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, और जो क्वेश्चन कहाँ से पूछने की संभावना है, मैं ये चैप्टर के जैसे जैसे हम कुछ पॉइंट समझ लेंगे, वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछने की और संभावना है। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो देखिए, व्हाट इज अ नर्वस सिस्टम, राइट? सो इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन्स, द सेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्व्स. So it is the system that controls and coordinates the body activities, conducts and integrates the information and response to the stimuli. So what do you mean by stimuli? It is a response to the specific things or the actions, right? That is called as stimuli. It includes brain, spinal cord, and the nerves, right? It is made up of specialized cells known as neurons. So nervous system is made up of neurons. This is the most important point. Now second, neuron is the structural and functional unit of nervous system. Neuron is a structural and functional unit of nervous system. It has 3 main parts. Which are the main parts of the neuron? First is the cell body, or it is also called as cytome. Second one is the dendrons, and third one is the axons. So we will see this now. सेल बॉडी, डेंड्रॉन और एक्सॉन मिला के स्ट्रक्चर बनता है न्यूरॉन का। अभी हम उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। यू कैन सी हियर द फिगर, राइट? दीज आर द डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन्स, right? These are the Nisser's granules which are present in the cytoplasm. This is the cell body or neuronal body, we can say. Centrally there is a presence of nucleus. अब ये जो बीच वाला पोर्शन है, a long tube, that is the axon, and this thing which is covered this axon, that particular cells are called as Schwann cells, है ना? And the sheath is present over this, that is a myelinated or myelin sheath. Between these two cells or sheaths, there is a space that is called as node of Ranvier, and this is terminal axons, and this is the synaptic cleft or knob, we can say. So फिर से एक बार देखते हैं हम इसमें. These are the dendrites, Nisser's granules, which are present in the cytoplasm of the neurons. उसके बाद में this is the central body which consists of nucleus. This is a long tube that is called as axon, which is covered by Schwann cells, and the sheath which covered it, that is called as myelin sheath. Between these two Schwann cells there is a space. That space consists of nodes. Plant में कैसे nodes रहते हैं, वैसे nodes के रहते हैं. That is called as node of Ranvier, and terminally this axon is pitted, and finally the terminal axons will there, and there is a swelling like portion that is called as synaptic knob, through which there is a transmission of or neurotransmitters or other substances which create the electrical or chemical impulses through which the nervous system work. Now, the main portion is the cell body, or it is also called as cytome. It contains cytoplasm, right? उसके बाद में cell organelles and Nisser's granule, that is a granular bodies which are present inside the cytoplasm, right? Now the dendrons.
soft fibers that project out of the cell body. These are the soft fibers which projects out of the cell, that is the neuronal body. Sub branches of dendrons are called as dendrites. Right? These are the sub branches of the dendron. This is the dendron and these are the sub branches. They are called as dendrites. They transmit impulses towards the cell body. They transmit impulses towards the cell body here. Now, axon, or it is also called as nerve fiber, a long fiber which transmit impulse away from the cell body, which transmit the impulse away from the cell body. The branching of axon is called as axonite. This branching is called as axonite. You have to remember this thing, right? Each axonite ends as a bulb-like structure called as synaptic knob. This bulb-like structure is called as synaptic knob. Up till now, any question? किसी को नहीं समझा ऐसा कुछ? सर प्रीवियस पेज शो करो ना एक बार. कौन सा? यस सुंदरम? इसके पहले वाला. इसके पहले वाला क्या देखना था आपको? सुंदरम? हाँ सर, ये डेंड्रॉन हो गया. ये डेंड्रॉन क्या है ये पूछ रहे क्या आप? नहीं सर, इसका एससी लेना था. हो गया स्क्रीनशॉट. अच्छा, नो इशू, मैं तो सब डाल ही देता हूँ बाद में, पर स्क्रीनशॉट लेना है तो नो इशू, ले लो आप. ठीक है, यहां तक समझ में आया सुंदरम? हाँ सर. 3 parts are there: cell body, axon and dendrons or dendrites we can say. Now there are 3 types of neurons. ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखने लायक है. There are 3 types of neurons. अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है ये तो है इम्पोर्टेंट, बट इसमें से अभी तक है ना क्वेश्चन कुछ आया नहीं है नीट में, तो नो प्रॉब्लम, अभी पूछ सकते हैं. अभी तक नहीं आया वो पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट ये चैप्टर में बाकी भी चीजें बहुत सारी है इंपॉर्टेंट, उसमें से ज्यादा पूछते हैं. बट ये बेसिक है, तो ये बेसिक सभी बच्चे कर ही लेते हैं, है ना. इसके बाद वाला जो पोर्शन है उसमें फिर हो सकता है उनको लगता है कि बच्चे कम एंड तक पहुंचते हो, इसलिए नहीं किया होगा, तो चलो कोई बात नहीं है. There are 3 types of neurons: multipolar neuron, bipolar neuron and unipolar neuron. So multipolar किसे बोलते हैं? अब आपको तो पता है एक लॉन्ग ट्यूब जो है ये वाली उसको एक्सॉन बोलते हैं. So there is a one axon and 2 or more dendrons will be there. So that type of neuron is called as multipolar neuron. There will be a one axon and 2 or more dendrons, right? So it is specialized cells of cerebral cortex. Cerebral cortex बोले तो क्या है? ब्रेन का पार्ट है, ध्यान में रखो, है ना. तो ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स जो है ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं. Now second type, that is a bipolar, bi, multi and uni. These are the types of neurons. तो bipolar neurons क्या है? इसमें one axon है और one dendron है. It is found in the retina of eye. देखो यहाँ पे one axon है और one dendron है, right? So it is found in the retina of eye. तो ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लासेस के टाइप्स के साथ साथ. ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मल्टीपोलर न्यूरॉन है, रेटिना में कौन से हैं? बाइपोलर न्यूरॉन है, एंड यूनिपोलर न्यूरॉन्स जो है which are found only in the embryonic stage, right? Only axons is there, one axon only. It consists of one axon only, right? ये जो बॉडी दिख रही है ये सेल बॉडी है,
डेंड्रॉन है ही नहीं इसमें। समझ में आया आपको? क्यों सर? क्या हुआ? इसमें डेंड्रॉन क्यों नहीं है? ये एम्ब्रियोनिक स्टेज वाला है, जो सबसे पहले जो सेल बनता है ना अपना, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फिर जाइगोट फॉर्म होता है ना? तो उस स्टेज में इसकी जो है ग्रोथ होने की रहती, क्योंकि वहां नर्व ट्रांसमिशन या इंपल्सेस की इतनी जरूरत रहती नहीं है, एकदम छोटी बॉडी रहती ना। समझ में आया क्या सुंदरम? हाँ सर, हाँ सर। एकदम छोटा रहता है वो। पहले तो एम्ब्रियो बोले तो 8 सेल स्टेज नहीं क्या, ब्लास्टुला। उसके बाद में जाइगोट फॉर्म होता, तो वो कैसा सेलुलर बॉडी हो गई वो। उस टाइप पे नर्व इम्पल्सेस बहुत ज्यादा दूर लेके जाने की जरूरत ही नहीं है, तो इसीलिए वहां पे डेवलप ही नहीं होता वो, है ना? जैसे जैसे ग्रोथ होंगी वैसे वैसे उसका डेवलपमेंट होगा। यू कैन सी हियर मल्टीपोलर न्यूरॉन, दिस इज मोटर, है ना? और ये इंटर न्यूरॉन भी है, दिस इज मल्टीपोलर। और ये सेंसरी न्यूरॉन जो बताया गया है, इट इज अ यूनिपोलर। ये रिसेप्टर सेल है, यहाँ से सेंसेस ट्रांसमिट होते हैं। इसमें डाउट किसी को मल्टीपोलर, बाइपोलर और यूनिपोलर में? बोलो बेटा। नहीं सर। ठीक है ना? वैसे ये तो बहुत इंटरेस्टिंग और सिंपल है। नाउ टाइप्स ऑफ एक्सॉन्स। अभी हमने टाइप ऑफ न्यूरॉन्स दिखे थे, 3 टाइप के। अब न्यूरॉन का एक पार्ट है, न्यूरॉन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, व्हिच आर दे? बताओ, जल्दी बताओ कोई तो भी। मल्टीपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन और यूनिपोलर न्यूरॉन। नहीं 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 नहीं, नहीं। टाइप्स नहीं पूछ रहा हूं मैं, न्यूरॉन के पार्ट पूछ रहा हूं। व्हिच आर द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स? एक्सॉन, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स, एक्सॉन एंड सेल बॉडी, बराबर है कि नहीं? यस। तो अब इसमें जो एक्सॉन था, सेल बॉडी और डेंड्राइट छोड़ दो, उसमें जो एक्सॉन है ये लॉन्ग ट्यूब which carry away the impulses, right? तो उसके टाइप, दैट इज एक्सॉन के टाइप्स कौन से? The first one is the myelinated and second one is the non-myelinated. अब हमने जो स्ट्रक्चर देखा था न्यूरॉन्स का, उसमें माइलिन शीट देखी थी। श्वान सेल्स जो है, श्वान सेल्स में माइलिन शीट है, यहाँ पे देखो, ये जो श्वान सेल्स है ये कवर करते हैं एक्सॉन, और इसमें जो शीट है, कवरिंग है, उसको क्या बोला गया है? माइलिन शीट। और ये बीच में जो नोड ऑफ रेनवीर मैंने बोला था, तो ये आप यहाँ पे चेक कर लो, ये 2 श्वान सेल के बीच की जो स्पेस है जहाँ पे एक्सॉन ओपन होता है, दैट इज अ नोड ऑफ रेनवीर, है ना? तो जहां पे माइलिन शीट है, दैट इज अ माइलिनेटेड एक्सॉन। और सेकंड देख लो आप, जहां पे माइलिन शीट एब्सेंट है, यहाँ पे है क्या, दिख रही क्या? नहीं। So that is a non-myelinated axons. So Schwann cells are present here, but myelin sheath is absent. According to this, Schwann cells present, but no myelin sheath, means वो myelin sheath की वजह से यहाँ पे दिख रहे हैं बड़े बड़े Schwann cells, है ना? यहाँ पे myelin sheath, Schwann cells तो है, लेकिन myelin sheath नहीं होने के कारण एकदम चपटे है। ये जो ब्लू कलर दिख रहा है, दैट इज अ ग्रे कलर, वी कैन से the gray color area without myelin sheath is called as gray matter, right? It is found in autonomous and somatic nervous system. समझ में आया? नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स कहाँ पे रहते हैं? दैट इज ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अभी ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम क्या है, ये हम आने वाले इसमें डिटेल में देखने वाले, है ना? सो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम क्या है, पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। सर। यस सर वहां पे माइलिन शीट नहीं है तो स्पीड कम हो जाएंगी ना? किसकी? माइलिन शीट नहीं है तो क्या स्पीड कम हो जाएंगी नर्व इंपल्सेस की?
यस ओके, एक मिनिट हा, मैं बता देतो. हॅलो, वहिनी मी क्लास मध्ये आहे, क्लास झाल्यावर कॉल करतो. हा. तो माइलिन शीट का क्या रोल है हम देखेंगे आने वाले इसमें, है ना. तो माइलिन शीट प्रेजेंट है, एब्सेंट है. तो देखो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम क्या है और सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है, ये भी हम देखने वाले हैं. पार्ट बाय पार्ट ये रिवील होने वाला है, समझे. तो ये टाइप्स ऑफ एक्सॉन्स है, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड. इसमें कोई डाउट? किसी को डाउट? हेलो, ये देखो कैसा है, नो सर. ये जो है स्ट्रक्चर जो बने हैं अकॉर्डिंग टू जहां जहां उनका जैसा वर्क है उसके हिसाब से बनाए गए हैं, है ना. तो अभी नेक्स्ट पॉइंट है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. नर्व इम्पल्स जनरेट कैसे हो रहे हैं और कंडक्ट कैसे हो रहे हैं, राइट. ये चीज हमको देखना है. ऐसे थोड़ा सा ये आपको समझ लेना पड़ेगा प्रॉपर. इसमें जो है 3 स्टेजेस है इम्पल्स ट्रांसमिशन में, राइट. तो इस इम्पल्स ट्रांसमिशन इज पर्टिकुलरली electrochemical route. It consists of 3 steps. Maintenance of resting membrane potential means जो membrane है न्यूरॉन्स की उसका रेस्टिंग इसमें पोटेंशियल मेंटेन करना रेस्टिंग फेज में, ये पहला पॉइंट हो गया. सेकंड इज एक्शन पोटेंशियल, राइट, एंड प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ये थर्ड पॉइंट. ये 3 वे में है ना, ये नर्व इम्पल्सेस जनरेट करने के लिए ये 3 स्टेजेस है. पहले तो मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग पोटेंशियल, और ये नर्व इम्पल्सेस है कितने फास्ट है आपको भी पता है ना. अपन तुरंत रिफ्लक्स देते हैं या रिएक्शन देते हैं कोई भी इसके ऊपर. सो यहाँ पे 3 स्टेजेस है. मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उसके बाद में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना और उसको प्रोपोगेट करना, है ना, प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल. नाउ इसमें से आपको जो इंपॉर्टेंट लगे वो नोट डाउन करते चलो. अब फर्स्ट पॉइंट आता है नर्व इम्पल्स जनरेशन में, राइट, मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग पोटेंशियल, maintenance of resting membrane potential we can say. So it is the membrane in the resting phase. Now neural membrane contains various selective permeable ion channels, है ना. तो नर्व इम्पल्सेस के लिए आयंस की बहुत जरूरत होती है. तो न्यूरल मेम्ब्रेन कंटेन्स वेरियस सिलेक्टिव permeable ion channels. Now in the resting न्यूरॉन नॉट कंडक्टिंग इम्पल्सेस, अगर कोई भी रेस्टिंग फेज में है तो कोई एक्शन पोटेंशियल तो कर नहीं रहे जनरेट, बराबर है ना. तो रेस्टिंग न्यूरॉन में क्या है, रेस्टिंग फेज में होने के कारण कुछ भी नहीं हो रहा है. द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू द पोटेशियम आयंस. नाउ तो एक्सॉन की मेम्ब्रेन जो है वो ज्यादा परमिएबल किसके लिए है, पोटेशियम आयंस के लिए, and nearly impermeable to sodium ions. अब देखो ये रेस्टिंग फेज है, इसमें K प्लस आयंस इज अ पोटेशियम एंड विच इज परमिएबल. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेशियम आयंस ज्यादा एंटर कर रहे हैं और इस फेज में रेस्टिंग में होने के कारण सोडियम आयंस क्या है, इम्परमिएबल है मेम्ब्रेन के अंदर, एक्सॉन की मेम्ब्रेन के अंदर वो जा नहीं सकते. Also the membrane is impermeable to the negatively charged protein
इन एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म क्या है? एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म है उसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। सो मेम्ब्रेन इज आल्सो impermeable to the negative charged proteins, है ना। मेम्ब्रेन्स निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स को भी परमिट नहीं होने देती है। तो रेस्टिंग फेज में क्या हो रहा है? पोटेशियम आयंस परमिएबल है, सोडियम आयंस क्या है? ब्लॉक्ड है, मींस नॉट परमिएबल, एंड इट इज आल्सो impermeable टू द नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स। ये इस बात आपको समझ में आया? यस नो बोलो फास्ट। यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट Yes, sir. इसी का। अब क्या हो रहा कि पोटेशियम आयन जो है, K+ आयन जो है अंदर ज्यादा जा रहे हैं, है ना। तो therefore the concentration of potassium ions and negative charge protein in the exoplasm is high and concentration of sodium is low। तो पोटेशियम ज्यादा अंदर होने के कारण कॉन्सेंट्रेशन अंदर किसका हो गया? पोटेशियम का ज्यादा हो गया, सोडियम का लो हो गया, है ना। अभी एक्सॉन के बाहर जो फ्लूइड है, द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन कंटेन्स लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम। एक्सॉन के अंदर जो है वो पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, तो बाहर में क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, है ना। और बाहर में सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और अंदर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम है। दिस फॉर्म एन आयोनिक और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन। इसके वजह से क्या हो रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म हो रहा है। पर्टिकुलर आयंस जो है, सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई एक्सॉन के बाहर, और पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई। उसका अपोजिट, पोटेशियम आयंस अंदर ज्यादा हो गए एक्सॉन के और बाहर में क्या हो गए? कम हो गए। सो इट फॉर्म्स ए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, राइट। ये बात समझ में आई यहां तक? सर लास्ट पॉइंट ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट मींस कॉन्सेंट्रेशन का, देखो कैसा है कि हिंदी में उसको क्या बोलते हैं ग्रेडियंट को? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है? परसेंटेज कोई भी चीज का ज्यादा कम होना, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट। समझा क्या सुंदरम? हाँ सर। कॉन्सेंट्रेशन अगर बाहर या अंदर ज्यादा कम होता हो उसको कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं, राइट। अब क्या हो रहा इसके वजह से? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एक्सॉन्स जो है वो रेस्टिंग फेज में है, कुछ भी नहीं हो रहा उसमें। अब इसके वजह से सेकेंड फेज में क्या हो गया था कि ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म हो गया। पोटेशियम के का अंदर ज्यादा है और सोडियम का बाहर ज्यादा है, बराबर है। द आयनिक ग्रेडियंट्स आर मेंटेन्ड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस बाय द NAK पंप, दैट इज सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं इसको, राइट। आयनिक ग्रेडियंट कौन मेंटेन करता है? सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेन करता है। तो ये कैसे करता है? देखो, इट ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम आउटवर्ड्स फॉर द 2 पोटेशियम इनटू द सेल। 2 पोटेशियम आयन सेल्स के अंदर लेने के लिए इनको 3 सोडियम आयन बाहर फेंकने पड़ते हैं, राइट। इसके वजह से क्या हो जाता है? एज अ रिजल्ट द आउटर सरफेस बिकम पॉजिटिवली चार्ज and inner surface become negatively charged। Understood? इसके वजह से ये आउटर सरफेस देखो पॉजिटिवली चार्ज हो गया है और इनर सरफेस क्या हो गया है? निगेटिवली चार्ज हो गया है। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज सोडियम बाहर 2-2-3-3 फेंके जा रहे हैं और यहाँ पे जो पोटेशियम आ रहा है, K+ आयंस आ रहे हैं, सिर्फ 2-2 अंदर आ रहे हैं। तो इधर इसके कंपैरिजन में कैसा है? चार्ज कम हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएंगे। The electrical potential difference across the resting plasma membrane is called as a resting potential। जो कुछ भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फॉर्म हो रहा है, पॉजिटिव आयंस बाहर ज्यादा और निगेटिव आयंस अंदर ज्यादा, ये जो भी फॉर्म हो रहा है चित्र रेस्टिंग फेज में,
उस चीज को क्या बोला जाता है? रेस्टिंग पोटेंशियल। इसमें डाउट? सबको समझा या कंफ्यूज हो रहे हो? मुझे क्लियरली बताओ। सर लास्ट पॉइंट। देखो, शुरू से बताता हूं, ये मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होगा। अब एक्सॉन जो है वो रेस्टिंग फेज में है। रेस्टिंग फेज में क्या हो रहा है कि कोई एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है उनको। तो उस टाइम पे क्या हो रहा है कि ये जो सोडियम आयंस है वो बाहर ज्यादा जा रहे हैं और पोटेशियम आयंस जो है अंदर आ रहे हैं। अब ये काम करता है सोडियम पोटेशियम पंप। अब ये कैसे करता है? 3 सोडियम बाहर फेंकता है और 2 ही पोटेशियम अंदर लेता है एक्सॉन में, है ना। उसके वजह से जो भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट हो रहा है यहाँ पे, है ना, पॉजिटिविटी ज्यादा बाहर है और निगेटिविटी अंदर है ना। तो ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, डिफरेंस फॉर्म हो रहा है, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड एज रेस्टिंग पोटेंशियल। क्योंकि ये रेस्टिंग फेज में पोटेंशियल जो बन रहा है, इसीलिए इसको रेस्टिंग पोटेंशियल बोला जा रहा है। अभी समझ में आया देवेश? देवेश, देवेश, यस सर। ओके। नहीं समझा अभी भी। क्या क्या? नहीं समझा सर, लास्ट का पॉइंट। सर कंफ्यूज कंफ्यूज हो रहा है? एक मिनट, मैं है ना आपको अलग वे से समझाता हूँ थोड़ा सा, है ना। सॉरी, ये कहाँ गायब हो गया सब? Is it visible whiteboard? Yes, sir. यस सर। यस Who can see you share? Okay. Is it visible? Whiteboard is visible? बेटा, यस सर। सर व्हाइट बोर्ड विजिबल है क्या सबको? हाँ अरे आवाज आ रही कि नहीं आपको? आ रही ना सर। काजल, निधि, मयूर, प्रांजलि, रेशमा, देवेश, यस सर। यस सर। यस सर अरे आवाज आ रही क्या किसी को? हाँ सर आ रही। आ रही सर आवाज। आवाज आ रही है क्या?
यस सर आ रही। Yes, आपके sir. पास हेलो राधिका, Yes, sir. निधि, पूजा, प्रांजलि, हेलो, आवाज आ रही आ क्या? रही सर आवाज। आ रही सर क्या? आवाज। यस सर। देखो मैं बता रहा हूँ आपको अभी, ये दिख रहा है क्या आपको व्हाइट बोर्ड? यस सर। Sir. देखो अब पॉइंट क्या था हमारा, हम क्या समझना चाह रहे थे इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। देयर आर 3 स्टेजेस, राइट? आपने इसके पहले भी देखा है। राइट, अब हमारा क्या था, मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, राइट? तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या हो रहा है, यहां पे अभी ये रेस्टिंग फेज है, ज्यादा ही बड़ा हो गया। जो न्यूरॉन है रेस्टिंग फेज में है। अब ये रेस्टिंग फेज में काम तो कुछ नहीं कर रहा है ये, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जो सोडियम है ये बाहर जा रहे हैं और पोटेशियम क्या हो रहा है, K+ आयंस ये अंदर एंट्री कर रहे हैं, किसमें, एक्सॉन में। यहां तक समझा क्या, बताओ फर्स्ट? यस सर। Yes, sir. ठीक है ना? अब क्या होता, ये जो सोडियम और पोटेशियम है इसका Na पंप है, एक चैनल के थ्रू ये होता है। विच चैनल इज दैट? सोडियम पोटेशियम पंप। अब रेस्टिंग फेज में क्या हो रहा है, जब पोटेशियम को अंदर लाना यहाँ पे प्रायोरिटी है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्जेस उसके वजह से तैयार होंगे। समझ में आया ना? निगेटिव चार्जेस तैयार होंगे इसके वजह से। और बाहर में क्या है, उनको पॉजिटिव चार्जेस रेडी करना है रेस्टिंग फेज इसमें। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा, सोडियम, ये पंप का क्या रोल है, ये क्या करता है, 3 सोडियम जो है वो बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम आयंस जो है वो अंदर लाता है। इसके वजह से क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज बाहर ज्यादा हो गया ना, हुआ कि नहीं? यस नो बोलो। Yes, हाँ यस सर। सर। अब 100 बार ये Yes, sir. होने के बाद, 100 बार अगर सोडियम पोटेशियम चैनल ने एक्शन कर लिया तो 100 × 3 Na एक बार में जा रहे हैं, तो 300 सोडियम बाहर हो जाएंगे और 200 क्या हो जाएंगे, पोटेशियम अंदर हो जाएंगे। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, बाहर के साइड में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया क्रिएट। तो Yes, इस sir. टाइप में जो पोटेंशियल फॉर्म हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज रेस्टिंग पोटेंशियल। समझ में आया क्या? हाँ सर। Yes, हाँ सर। sir. है ना? बस यही चीज थी इसमें। अब नेक्स्ट है, अब हो गया रेस्टिंग में हो गया, अभी एक्शन में आने का टाइम आ गया है ना? अब एक्शन में आने का टाइम आ गया। व्हेन ए स्टिमुलस इज अप्लाइड, अब क्या हो जाएगा, जब स्टिमुलस आ जाएगा कोई, द मेम्ब्रेन एट द साइट ए बिकम्स परमिएबल टू द सोडियम चैनल। अब ये साइट कौन सी है बेटा, ये ए साइट है, दिख रहा है आपको?
अब रेस्ट में Yes, थे sir. तो तब कुछ काम नहीं था, तो पोटेंशियल फॉर्म हो गया, है ना, रेस्टिंग पोटेंशियल फॉर्म हो गया। अब एक्शन में आने के लिए एक्शन पोटेंशियल फॉर्म होगा, है ना। तो जो ए साइट है और ये बी साइट है, अब यहाँ पे क्या हो रहा कि ए साइट परमिट करेगी सोडियम आयन को फिर से अंदर आने के लिए। दिस कॉजेस द रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम and reversal of the polarity at that site. So outer negative and the inner positive. This process is called as depolarization. अब जो पहली फेज में हुआ रेस्टिंग पोटेंशियल में, उसके अपोजिट होगा एक्शन पोटेंशियल में। ये बात समझ में आए क्या? पहले क्या हो रहा था, अरे 1 मिनट बचा है, मैं रिस्टार्ट करता हूँ इसको स्टॉप करके फिर से करता हूँ, फिर से रिजॉइन करो, सब लोग करो, 2-4 गायब होते इसमें से।